Good morning, students. So let's start our new theme. Not the new theme, actually the new part of the theme 5. Clear? The first part of this theme we done in the previous video also. I hope you understood all. Yes, and the second part, let's start about the new traveler. Let's see what this traveler seen India and the different in the different aspect. What he thought about the India and what he wrote about the India and actually basically about Ibn Battuta. We are going to do in this video. Clear? Like who was he, from where he came, and after that what the name of the book he written and all that thing. So first of all, the name of the book he written was the Rihala. Second thing, the time period he came to India is the 14th century. For example, in the previous video I told you about the 10th to 11th century between, and now this is of the 14th century. Basically he written in the Arabic language. Clear? And his book name is the Rihala. He written in the Arabic language, and as usual all three travelers wrote about the social and the cultural issues of the India. So let's start our this what the Ibn Battuta said and what he written in his Rihla. Clear? So from where he came and all that. So let's start that he came in the 14th century. He basically written in the Arabic language. Clear? And book name is the Rihla, and then in the Rihla he written about the social and the cultural life in whole. Basically written about what type of cities are there, and actually he was a globe trotter. Clear? He was a globe trotter. He roamed in too many like the areas in the, if you tell about the Asia, Africa, like there are too many places and too many countries he roamed there. Clear? So that's why he is known as the globe trotter also. So he written everything in their account also. So he was born in the Moroccan. He was a Moroccan traveler born in the Tangier, and as usual as the before also, he was born in a very respectable and educated family. Those who know everything about the Sharia, I hope you know about the Sharia that we done in the 11th class also, the rules and the law of the that the Islamic law and culture and all that. They were that gained expertise in that Sharia also. That's why he so many times he did that he was Qazi also. So he received his scholastic education in the young age. The basic thing was differentiate him with the others was that what he understood like that books, rather than take the thoroughly knowledge in the books, what he was thinking about that the experience gained through the travels is more important that rather than the gaining about it, like that all we are thinking about that कि हमें किस तरीके की नॉलेज, हमें मतलब हम जो है किताबी नॉलेज से ज़्यादा हमें जो है बाहर की जो है पूरी दुनिया की वो नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए. क्लियर? सो वो नॉलेज इसे किससे ये क्या मानता था, वो नॉलेज किताबों की जगह घूम घूम के हमें मिलती है. दैट वॉज अ थिंग. सो ही वॉज अ ग्लोब ट्रॉटर अराउंड 1332 to 33. He went to so many places like the Mecca, then Syria, Yemen, Oman, Persia, Iraq, most of the जो है coastal areas of that Eastern Africa also, and after that Multan, India and China. Multan, India and China. So Sindh also there. He reached Sindh in the 1333. And he heard about the Muhammad. Now he was that Sultan of that time in that Delhi, Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of the Delhi. He heard about his generosity. He heard about his he was the patron of art and letters, like all that thing. He heard about so many things about the Muhammad bin Tughlaq. So when he met Muhammad bin Tughlaq, passing through, he went how he went to Delhi, passing through Multan, then Uch, and after that there was a route in that your book also, and after that he went to the Delhi, and then he met to the Muhammad bin Tughlaq, and there is when he met to the Muhammad bin Tughlaq, there was a name. Then he bought camels, slaves. It is not written here, it will come afterwards. He bought the camel, slaves, almond, raisins, and horses.
Clear? He bought from the Sindh, and when he went to the court of the Muhammad bin Tughlaq, he presented him horses, slaves, and the armored and rations. Clear? So he appointed as a qazi or the judge as the emperor of the court over the period of time. Now now the story started when he came here in that 1333. In the Delhi, Muhammad bin Tughlaq, as usual, the fond of the scholastic peoples and all that, art and literature, he appointed as the Qazi. Then due to some misunderstanding, Muhammad bin Tughlaq put him behind the bars, उसे जेल में डाल दिया. Clear? And when the misunderstanding that full मतलब जब वो solve हो गया वो problem, then later he released and sent to the China as an envoy. तो उसको दूध बना के उन्होंने कहाँ भेज दिया? चाइना भेज दिया. Clear? If the emperor in 1342 to the Mughal ruler. उस टाइम पे जो है वहाँ पे मुगल रूलर कौन थे? वहाँ पे मोंगल रूलर थे, नॉट द मुगल रूलर. मोंगल रूलर के पास उन्होंने जो है अपना दूध बना के भेजा. कब? 1342 में. 1333 में यहाँ आए. 1342 में कहाँ के लिए रवाना हो गए? 1342 के अंदर चाइना के लिए कौन रवाना हुए? दैट ट्रैवलर. क्लियर? नाउ इब्न बतूता. सो आफ्टर दैट चाइना क्या डायरेक्ट उन्होंने चाइना द टाइम ऑफ द टाइम देन ही कैन दैट एवरीवन कैन नाउ वी कैन मूव टू द चाइना. इट्स वेरी इजी रूट टू कैन मूव. उस टाइम पे भी ऐसा ही था. नो, इट वॉज नॉट ईजी टू मूव देयर. सो किस तरीके से वो गया? किस तरह से द न्यू असाइनमेंट उनको मिला, चाइना जाना है. ठीक है, दैट वॉज द न्यू असाइनमेंट. कहाँ कहाँ होते गया? सबसे पहले सेंट्रल इंडिया से रूट किया जो है मालाबार कोस्ट की तरफ, इधर जो है केरल कर्नाटका के साइड. ठीक है ना. फिर उसके बाद जो है वो गए मालदीव्स में. वहाँ पे 18 महीनों ने काजी का जॉब किया. ठीक है. एंड ही इवेंचुअली डिसाइड टू प्रोसीड टू. फिर उसके बाद मालदीव से उनका मन किया तो अचानक ही वो श्रीलंका चले गए. श्रीलंका से फिर वो वापस आए. ही कम बैक टू द मालाबार एंड द मालदीव्स. बिफोर वेंट टू चाइना ही विजिटेड बंगाल एंड आसाम ऑल्सो. और चाइना जाने से पहले मतलब चाइना बिफोर वेंट टू द चाइना उन्होंने इतनी जगह देखी. सेंट्रल इंडिया गए, मालाबार कोस्ट, देन मालदीव्स. After Maldives, Sri Lanka, then come back to the Sri Lanka, then again Malabar coast, then Maldives, then again he went to the Bengal and then Assam, and from there he took the ship to the Sumatra. Sumatra जो है इंडोनेशिया में. सुमत्रा के लिए इंडोनेशिया ऐसी साइड है. यहाँ से घूमते हुए जो है बे ऑफ बंगाल से घूमते हुए जाएंगे. ठीक है, सुमत्रा. और सुमत्रा से जो इन्होंने दूसरा शिप लिया वहाँ पे था. यहाँ से कहाँ से गए? वहाँ से बंगाल और इधर से गए सुमत्रा. और सुमत्रा से इन्होंने शिप लिया जैतून के लिए. ठीक है, दैट वाज द चाइनीज पोर्ट. एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू द देन ही विजिट टू द चाइना अलॉट. नाउ ही विजिट टू चाइना वॉज वेरी हिज विजिट टू बहुत घूमा उन्होंने चाइना में. वेरी एक्सटेंसिव विजिट वॉज देयर. एंड एट द लास्ट वो कहाँ पहुँचे? बीजिंग, कैपिटल ऑफ चाइना. बट डिड नॉट स्टे ओवर ए लॉन्ग टाइम. और वहाँ पे रहने के बाद थोड़े समय बाद इन्होंने जो है वापस जाने का सोच लिया. 1347 में एट देयर नेटिव होम. 1347 में वो अपने घर वापस चले गए. घर इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोरक्को. सो देखो 1333 के अंदर इंडिया आए. 1332 से इन्होंने जो है अपना जो स्टार्ट किया. ठीक है, मक्का होते हुए सीरिया, येमन, यहाँ से होते होते इंडिया पहुँचे. 1333 में सिंध पहुँच गए. ठीक है, सिंध से जो है 1340 वहाँ रहे. फिर 42 के अंदर आफ्टर 9 ईयर्स जो है वहाँ से वो जो है चाइना के लिए चले गए. चाइना के लिए इन्होंने पर्टिकुलरली रूट लिया. ठीक है, इस तरीके से घूमते घूमते चाइना पहुँचे. और 47 में बीजिंग से जो है इन्होंने जो है कम बैक वहाँ से वापस जो है जाने का सोच लिया. इनके जितने भी इन्होंने जो लिखा था इनको जो है मार्को पोलो से जो है कंपेयर किया जाता था. जो 13th सेंचुरी के अंदर जो है सेम इंडिया और चाइना आ चुके थे, इनको मार्को पोलो से कंपेयर किया जाता था. इनकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबाउट द चाइना जो भी थी वो बिल्कुल मार्को पोलो के से इनको कंपेयर करते थे. ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द न्यू कल्चर, बिलीव्स. Now, what he recorded, what he seen, different peoples, as usual, the traveler seen the different people, different languages, different beliefs, different values, different costumes, different types of that food they eat and everything. What they think different from there, he observed everything and written in their account. Clear? So, like this. ही वॉज अर्ली ट्रॉटर. इस तरह से घूमते घूमते जो चाइना और चाइना से जो है वापस चले गए. फिर उसके बाद इट वॉज नॉट द ईजी टास्क. इतना आसान नहीं है आज के टाइम पे जिस तरह से ट्रैवलिंग हम करते हैं उस टाइम से एयर ट्रैवलिंग करें. इट वॉज द ईजी टास्क टू ट्रैवल. इट वॉज मोर हजार्डियस. उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था ट्रैवलिंग करते टाइम. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपनी बुक में लिखा है 40 डेज उनको लगे मुल्तान से दिल्ली पहुँचने में.
40 डेज़ मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में, 50 डेज़ लगते थे वहाँ से सिंध से दिल्ली पहुंचने में, 40 डेज़ लगते थे दौलताबाद इज़ इन द महाराष्ट्र, वहाँ से दिल्ली पहुंचने में, और ग्वालियर से जो है दिल्ली पहुंचने में 10 डेज़। तो उन्होंने अपने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कितने कितने दिन में कहाँ से कहाँ पहुँचा जा सकता था। क्लियर। ऑल्सो ट्रैवलिंग वॉज वेरी इनसिक्योर, बहुत बारी बीच में रॉबर्स, बैंडिट्स एंड उनको लूट लिया जाता था एवरीथिंग। तो प्रिफर अकेले चलना प्रिफर नहीं करते थे, वो कारवां में चलना प्रिफर करते थे एक साथ मिलके। तो इट वॉज द टाइम व्हेन वो ही वॉज कमिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आ रहे थे मुल्तान से, तब वो जो है कारवां में ही आ रहे थे। तो उनको जो है बहुत बुरी तरीके से उनको लूटा गया था, उनके जितने भी कंपेनियंस थे उनको जो बहुत सारे लोग जो है उसमें मारे भी गए थे। क्लियर। उनके दे लॉस देयर लाइव्स ऑल्सो, और इनको भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे। ये मैन स्पेलिंग मैन ऑफ दिस। क्लियर। सो इट वॉज नॉट द ईजी टास्क। सो बेसिकली वॉट ही वॉज टेलिंग कि ग्लोब ट्रॉटर, ही वॉज ग्लोब ट्रॉटर, वो किस तरीके से कितनी प्रॉब्लम्स भी हुआ करती थी। ही वॉज वेरी एजुकेटेड, काजी, जगह जगह वो काजी रहे। क्लियर। एंड आफ्टर दैट वो यहाँ पे आए, और फिर यहाँ पे भी उनको बार्स में के पीछे मतलब लाइक जेल में रहना पड़े ना। आफ्टर दैट दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, फिर वो चाइना से फिर वो जो है वापस अपने नेटिव प्लेस चले गए। क्लियर। नाउ व्हाट ही रिटन इन हिज बुक, ये तो था उनका जो है वो कहाँ किस तरीके से उन्होंने जो है कहाँ से कहाँ उनका रूट प्लान था। ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट अबाउट, ये तो एन्जॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी का तो इसमें ये है कि जब ये वापस गए, यहाँ से वापस गए, तो इन्होंने जो भी लिखा हुआ था, तो वहाँ के जो किंग थे या वहाँ के जो रूलर्स थे, उन्होंने बोला इनकी सारी चीज़ें जो हैं, इन्होंने इनके सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं कि इनको स्टोरीज़ को सब रिकॉर्ड करना है। इनका जो इन्होंने जितना भी पूरा लॉन्ग रूट लिया वो सब रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया वहाँ के रूलर्स ने, मोरक्को के रूलर्स ने। नाउ आफ्टर दैट व्हाट ही रिटन इन दिस, अब ये वो चीज़ें नहीं लिखा करते थे जो बहुत ही फैमिलियर या ये सब, ये बिल्कुल अलग। लाइक कंपैरिजन में हमने पिछले एक बार पढ़ा भी था कि जो मतलब कंपेयर करते थे तो फैमिलियर चीज़ों से कंपेयर करते थे। मैं आई टोल्ड यू इन दैट 4th चैप्टर 4th थीम ऑल्सो। नाउ व्हाट ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ही नोटेड डाउन द अनफैमिलियर थिंग्स, ताकि वो उनको लिख सके, उनको जान सके, और जब वो चीज़ें उनके नेटिव प्लेस में जाके पता चले तो लोग उसको एक्साइटेड होकर सुने कि हाँ कि ऐसी जगह भी जाया जा सकता है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं या इस तरह के लोग रहते हैं। ठीक है। लाइक जस्ट लाइक दैट वी कैन थिंक अबाउट द एलियंस एंड ऑल दैट, जस्ट लाइक दैट एट दैट टाइम। इन द 14th century द सब कंटिनेंट वॉज द पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, और उस टाइम के अंदर जो है काफ़ी इंडिया जो है, इंडियन सब कंटिनेंट काफ़ी दूर दूर तक उसकी ट्रेडिंग वगैरह होनी शुरू हो गई थी। वो ट्रेड किया करता था नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर और यूरोप इन द वेस्ट, एंड काफ़ी सेंट्रल एशिया में काफ़ी दूर दूर तक वो ट्रेडिंग हुआ करती थी। सो एज यूजुअल ही ऑल्सो ट्रैवल थ्रू ऑल दीज लैंड, और ये जो है इब्न बतूता ऑल्सो ट्रैवल दीज लैंड। सो ही विजिटेड वेर ही ट्रेवल्ड ऑल दीज लैंड, उसने क्या क्या विजिट किया, ही श्राइन्स, डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग समय व्यतीत किया, अलग अलग राजाओं के साथ रहा, ऑफिशिएटेड एज काजी भी जो है उसको अपॉइंट किया गया। अर्बन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के अलग अलग एरियाज़ के लोग एक जगह जब रहते हैं, और शहरों में ऐसा ही होता है। अर्बन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को पहचाना, कौन से अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं जो बोलते हैं, अलग अलग आइडियाज़ शेयर करते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशंस, अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं सब लोग। इस तरीके से सारी चीज़ें जो उसने नोटेड की है, राइट डाउन इन देयर बुक ऑल्सो। सो दी स्टोरी इंक्लूडेड मैन, दे पिटी, दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिलीव, क्या लिखते थे अलग अलग स्टोरीज़ के अंदर कि किस तरह के लोग रहते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या काम करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल्स क्या सोचते हैं, राजा जनरस भी होते हैं, क्रूअल भी होते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसने नोटेड डाउन की और उसने लिखी। सो बेसिकली वो उसने सारे अनफैमिलियर चीज़ें जो हैं वो नोटेड डाउन की, उनको हाईलाइट किया बेसिकली। बाकी जो भी उन्होंने उसने अपने पूरे रूट में था वो सब लिखा सब कुछ, बट हाईलाइट किया उन अनफैमिलियर चीज़ों को जो उनके जो उनका जो देश था या मोरक्को से जो डिफरेंट था। सो लिसनर वॉज इम्प्रेस, जिसे लिसनर या रीडर जो भी बुक्स को पढ़ा, इम्प्रेस विद द अकाउंट ऑफ डिस्टेंट लैंड येट एसेसिबल्स वर्ड। सो ही रिटन ऑल दीज टाइप्स ऑफ द डिफरेंट people, different stories, different small real stories, and different languages, everything he written out all his in this he wrote out in his book. सो क्या क्या अनफेमिलियर जो है उनको मिला, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा है कोकोनट और पान ट्री के लिए जो है पान का पत्ता, लाइक वी ऑल आर नोइंग अबाउट दैट कोकोनट ट्री, वी ऑल आर नोइंग अबाउट दैट व्हाट ही थिंक अबाउट दैट द कोकोनट एंड द पान, बिकॉज दैट वाज नॉट इन देयर प्लेसेस. So in his book Riela, he recorded his observation in exciting and interesting way. He recorded the unique things, pan and the coconut.
अबाउट एंड ऑल्सो अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स एज आई एम टेलिंग यू। ट्रेड और कॉमर्स के बारे में तो वो लिख ही रहे थे साथ साथ के अंदर। ही कंपेयर्ड कोकोनट ट्री को उन्होंने किससे कंपेयर किया, अपने वहाँ के पाम ट्री से कंपेयर किया। एक्सेप्ट कि उन्होंने बोला कि बस थोड़ा फ्रूट जो है एक्सेप्ट द सेम वन द प्रोड्यूसेस द डेट्स एंड अदर बियर्स द कोकोनट है, मतलब बिल्कुल सेम दिखते हैं। जो पाम ट्री है बिल्कुल कोकोनट ट्री की तरह, कोकोनट ट्री पाम ट्री की तरह दिखता है, बस उनके फ्रूट्स जो है उसमें डेट लगते हैं, उसमें कोकोनट ट्री लगता है। और कोकोनट को उन्होंने बिल्कुल ऐसे का ऐसे लगता है कोकोनट जस्ट लाइक द मेन्स हेड। ही डिस्क्राइब द पान एज अ ट्री विच कल्टिवेट द सेम एज द मैन एज अ ग्रेप वाइन। और पान को उन्होंने बोला कि बिल्कुल वैसे ही कल्टिवेट किया जाता है जैसे ग्रेप वाइन जो है कल्टिवेट किए जाते हैं। तो ये दो अनफेमिलियर चीज़ जो थी उन्होंने नोटेड किया, राइट डाउन इन देयर बुक ऑल्सो। क्लियर? जैसे मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू दैट किस तरीके से वो अनफेमिलियर चीज़ों को नोटिस किया करते थे। डिफरेंट वहाँ जहाँ भी वो गए वहाँ पे जो भी डिफ्रेंशिएशन था उनके एरिया से वो सब नोट किया करते थे, वो सब लिखा करते थे, उनके बारे में जाना करते थे, इंटरेस्टिंग तरीके से उसको लिखते थे और अपनी बुक्स में, ताकि लोग उसको समझें और ये जाने कि हाँ जो डिस्टेंट प्लेसेस में भी जाना आसान है। सो इस तरीके से कोकोनट और पान के बारे में भी उन्होंने लिखा था ना। आफ्टर दैट ही राइट अबाउट द इंडियन सिटीज़। इंडियन सिटीज़ के अंदर उन्होंने लिखा कि किस तरीके की इंडियन सिटीज़ थी, कितनी कलरफुल थी, फुल ऑफ द मार्केट्स थी, मार्केट्स किस तरीके के हुआ करते थे, क्या क्या रिसोर्सेज थे, सामान कहाँ से आता था, एवरीथिंग लाइक दैट। सो इब्न बटूटा फाउंड द सिटीज इन सब फुल एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज and the skill. They were densely populated, prosperous, except the occasional disruptions caused by the wars and the invasion. शहरों के बारे में यहाँ लिखा, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ के शहरों में, बहुत रिसोर्सेज और स्किल्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, लोगों के पास बहुत कलाएँ हैं और बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और बहुत प्रॉस्पेरस भी है। नोटेड अबाउट दैट, डेंसली एंड प्रॉस्पेरस एक्सेप्ट द ओकेशनल डिसरप्शन। बस बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ फुलफिल चल रहा है। कभी कभी जो है डिस्ट्रप्शन हो जाता है, कभी वॉर हो जाती है यहाँ पे, या कभी लोग जो है बाहर से लूटने आ जाते हैं, उसके अलावा सब यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। ही डिस्क्राइब दिल्ली एज अ वास्ट सिटी। दिल्ली को उन्होंने क्या लिखा, बहुत ही बड़ा सिटी है, बहुत पॉपुलेशन यहाँ रहती है, बिल्कुल दौलताबाद की तरह। वाई ही कंपेयर द दौलताबाद, क्योंकि वहाँ भी गए तो उनके साइज़ की तरह, महाराष्ट्र में दौलताबाद उसके साइज़ की तरह जो कंपेयर किया कि दौलताबाद इतना बड़ा है साइज़ के अंदर दिल्ली। मोस्ट सिटीज़ ही क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, बहुत ही जो है भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, बहुत ही कलरफुल मार्केट है, रंग बिरंगा चारों तरफ, द डिफरेंट कलर्स ऑफ द क्लोथ्स एंड ऑल द ब्राइटनेस एवरीवेयर एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द गुड्स आर ऑल्सो देयर। So the economic transactions were all done properly, all were doing properly in that Delhi or their bazaars of the India at that time, what he written in his book. After that he also written कि not only in the bazaars economic transactions also there, but the social and the cultural activities are also there in that bazaars also. So what does that mean of social and cultural activity? That means social activities, that means the mosque, like that we can say like that, like religious and the temple were also there, and that cultural activities, all the performances, singers, dancer, musicians, ये सब भी यहाँ पे म्यूजिक भी वहाँ पे, लाइक लोग डांसिंग्स के लिए भी वहाँ पे मार्केट में प्लेसेस बना रहे हैं, बीच में होता है एक स्टेज की तरह लाइक लगा हुआ है सेंटर के अंदर, वहाँ पे लोग डांसिंग्स एंड म्यूजिशियंस एंड सिंगर सब लोग, मतलब हर चीज़ everything was there in the market of the Delhi, what he described in his book. So what is not only the economic transactions were there at that time, the social and cultural activities also there, religious activities were also there, different types of spaces for that performances were also there. So he was that, like Ibn Battuta was not fond of writing all these and explaining all the prosperity of towns line by line. वो उतना फॉन्ड नहीं था, वो सिर्फ उसके बारे में एक थोड़ा नॉलेज जानकारी अपनी बुक में रखता था कि यहाँ के बाज़ार ऐसे हैं, ज़्यादा डीप में वो नहीं लिखा करता था कि भाई कि किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है ना, नथिंग। बट जो हिस्टोरियंस थे उनको उस टाइम के मार्केट्स को या वहाँ के टाउन को जानने में बहुत ही मदद मिली थी विद अकाउंट ऑफ दैट Ibn Battuta. Clear? So still historians used his account for so many concerns, like in the town significant portions of the wealth come from the villages, very important things as usual also. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर का सारा भी सामान है कहाँ आता है बिकने के लिए, हमेशा मैंने तुम्हें बताया कहाँ आएगा, शहर में आएगा, अर्बन एरियाज में आएगा. सो जस्ट लाइक दैट दीज टाइप ऑफ थिंग हिस्टोरियंस फाइंड आउट फ्रॉम दैट अकाउंट कि सारा इतना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती थी, सब कुछ होता था. तो मोस्ट प्रोबेबली जितना भी पोर्शन कहाँ से आया करता था वेल्थ कमाने का, जो मतलब कहाँ से आ रही है सारी की सारी फ्रॉम द विलेजेस.
जो है जितने भी लाइक गुड्स आ रही हैं, सर्विसेज आ रही हैं, पीपल्स आ रहे हैं, वो सब कहाँ से कनेक्टेड होते थे? विलेजेस से। शहरों में तो वो सिर्फ थोड़े समय के लिए रहा करते थे वहाँ पर एट दैट टाइम, जब तक उनका सामान बिक नहीं जाता एंड ऑल दैट गुड्स एंड सर्विसेज। सो ही फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर। आफ्टर दैट इंडियन एग्रीकल्चर भी जो है उन्होंने फाइंड किया। इंडियन एग्रीकल्चर के लिए उसने लिखा कि बहुत ही यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है, यहाँ का जो सॉइल्स हैं इतनी फर्टाइल है कि एक साल में 2 बार जो है यहाँ पे ये लोग जो है क्रॉप ग्रो करते हैं। ही ऑल्सो नोटेड दैट सब कंटिनेंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एज आई टोल्ड यू, कि बहुत ही फ्लरिश्ड है, इंटीग्रेटेड इन द एशिया, पूरे एशिया में इनका ट्रेड कॉमर्स। सो इन होल व्हाट ही नोटिस द प्रॉस्पेरिटी, and still he noticed the another thing also, that is the population, and he noted the third thing is also that like everyone here, the peoples are very skilled and very intelligent here in the subcontinent as we are. There was a great demand of Indian textile, पर्टिकुलरली कॉटन क्लोथ फाइन मसलिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। लाइक हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली है, हमने गुड्स एंड सर्विसेज की बात मार्केट में कर ली है, अब हम बात करते हैं यहाँ हमारे पूरे एशिया के अंदर इंडियन टेक्सटाइल की बहुत डिमांड थी, ठीक है, लाइक कॉटन, मसलिन, ब्रॉकेट, सैटिन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो पूरे के पूरे एशिया के अंदर जो है सेल करने के लिए जाया करता था, जिससे मर्चेंट्स और आर्टिस्ट खूब पैसा कमाया करते थे। दे अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट बाय दिस। मर्चेंट एज यूजुअल, दे ऑल आर मर्चेंट, जो गुड्स एंड सेल्स और आर्टिशन, दोज हु आर प्रिंटिंग एंड ऑल थिंग जो बनाते हैं सब चीज़, तो ये सब इससे खूब पैसा कमाते थे एट दैट टाइम। सो इन्फॉर्म अस दैट द मसलिन, और इसमें इन सब जो हैं टेक्सटाइल के अंदर सबसे अच्छा कपड़ा इन्होंने जो है इब्न बटूता ने बताया कि मसलिन कपड़ा हुआ करता था, जो दोज हु वियर्ड बाय द लाइक वेल रिच पर्सनस, या राजा या बहुत ही नॉबल पर्सन ही पहना करते थे, या फिर राजा पहना करता था, ठीक है, लाइक इतनी महंगी हुआ करती थी कि हर कोई उसकी रीच से बाहर था। सो लाइक दिस ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इन हिज बुक, लाइक रिहला के अंदर इसने जो इसने देखा, क्या क्या इसने मतलब इसने क्या क्या अनफेमिलियर चीज़ें देखी, वॉट ही डिस्क्राइब इस दिन। इसने बहुत ज़्यादा उसको डीप में डिस्क्राइब नहीं किया है, बट उससे हिस्टोरियंस को बहुत मदद मिली है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अबाउट दैट। ही द अनदर थिंग इज डिस्क्राइब दैट द यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इसने बहुत ही प्रेस किया इंडियन यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ का पोस्टल सिस्टम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा पोस्टल सिस्टम यहाँ पे इसने बताया है कि मर्चेंट्स को जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है वहाँ पे जो है रहने की और हर जगह की सारी फैसिलिटीज़ दी जाया करती थी। इब्न बटूता वाज अमेज्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम विच अलाउड मर्चेंट टू नॉट ओनली टू सेंड इंफॉर्मेशन and remit credit across the distance land, but also dispatch the goods in the short notice। बहुत छोटे से नोटिस में एक जगह से दूसरी जगह सामान चला जाया करता था, इन्फॉर्मेशंस भी चली जाया करती थी, और जो मर्चेंट क्रेडिट्स भी इधर से उधर जो है आराम से हो जाया करते थे। एवरीथिंग बहुत ही फैसिलिटीज़ थी, पोस्टल सिस्टम बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। और मर्चेंट्स को रहने के लिए, मर्चेंट्स को बहुत इनक्रेज किया जाता था वहाँ पे उनको रहने के लिए, उनके इन्स एंड गेस्ट हाउस जैसे धर्मशाला टाइप्स होते हैं, ये सब जो है उनके लिए बनी हुआ करती थी। और पोस्टल सर्विस इतनी स्पीडी और एफिशिएंट थी कि जो 50 दिन का रूट था, वो रूट जो 50 दिन का रूट जैसे इन्होंने जो बताया हुआ है, तो वो रूट जो है 5 दिन के अंदर स्पाइस जो इसको कवर अप कर लेते थे विद द हॉर्सेस। द पोस्टल सर्विसेज वाज सो एफिशिएंट दैट इट टुक ओनली 5 days फ्रॉम सिंध टू दिल्ली, जो 50 days का रूट इन्होंने बताया हुआ है, टू रिपोर्ट द सुल्तान बाय द स्पाइस, जो भी रिपोर्ट सुल्तान को करनी हुआ करती थी। दैट रूट इज ऑफ 50, यस, सिंध टू दिल्ली इज ऑफ द 50, वो जो है 5 days में। तो यहाँ का जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ की है। सो इन होल वो रिहला के अंदर उसने इंडिया के सिटीज़, इंडिया के टाउन्स, इंडिया की फ्लरिशमेंट, यहाँ के टेक्सटाइल, यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ के कोकोनट एंड पान स्पेशली, क्लियर। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही, यहाँ का पॉपुलेशन मतलब यहाँ का प्रॉस्पेरिटी एंड एवरीथिंग ही डिस्क्राइब्ड लाइक एज इन द पॉजिटिव साइड्स, ऑल दैट। नाउ let's start about all thing written in the positive side. Let's start about the side of that's the last topic, the women. What do you think? क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली दे वर, एज आई टोल्ड यू व्हेन आई स्टार्ट द चैप्टर, दैट कि वुमेन्स का कोई अकाउंट यहाँ पे नहीं है। दे ओनली द पीपल, जब कुछ ऐसे टॉपिक्स हुआ करते थे जो इनके बारे में, जो यही लोग जो है ट्रैवलर्स उसके बारे में लिख लिया करते थे, लाइक वुमेन एज अ स्लेव, वुमेन एज सती, वुमेन एज द लेबरा, क्लियर। सो एक्चुअली टॉपिक एकदम लास्ट में आपके चैप्टर में, बट फ्यू थिंग्स दैट रिटन बाय द इब्न बटूता इन दिस, तो इसलिए मैंने इसको भी इसके अंदर ऐड ऑन कर लिया। सो दोज हु रिटन अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन देयर अकाउंट वर जनरली मैन। सो वुमेन्स की कंडीशन जिन्होंने भी बताई है वो सब क्या है, मैन ही हैं।
समटाइम दे टुक सोशल इनइक्वालिटीज़। अब इन्होंने उन चीज़ों को फोकस किया है, जैसे इन्होंने सोशल इनइक्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा टेक इट एज ग्रांटेड लिया हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने इसको फोकस, जो आज हम जिसको इनइक्वालिटीज़ को इतना बड़ा मानते हैं, उस टाइम पे दे टेकन इज फॉर ग्रांटेड। एक नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर है कि ठीक है कि ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं, स्लेव्स बिकते हैं, खरीदते हैं, तो इस पे कंसर्न नहीं किया है इब्न बटूटा ने कि स्लेव बिकते हैं, खरीदते, मतलब स्लेव्स की परेशानियों को इन्होंने नहीं वो कंसर्न किया। इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे स्लेव्स बिका करते थे या फिर क्या क्या काम आते, मतलब लाइक कि वुमेन्स की सिर्फ कंडीशंस बताई हैं, दैट इज इट, नथिंग एल्स। वुमेन्स एज अ स्लेव एंड मैन, वुमेन्स slaves as a woman and men both की बात चल रही है, क्लियर। सो एग्जाम्पल लाइक द slaves sold in the market like goods and exchange as a goods, जो इन्होंने बताया कि यहाँ पे slaves भी बिका करते थे, तो वो तो that were doing in everywhere at that time. So when he reached to the court of the Muhammad bin Tughlaq, as I told you, उसने present किया जो है slave horse and this is not the reason, this is reason, wrong spelling mistake, almond to the sultan, he purchased the horses, उसने कहाँ से खरीदे थे, ये सब सिंध से उसने खरीदे, उसने जो है प्रेजेंट किया, ठीक है। तो दैट वाज अ नॉर्मल थिंग, मतलब ये जब स्लेव्स को खरीदना बेचना, उनको प्रेजेंट की तरह दे देना, दैट वाज अ नॉर्मल थिंग एट दैट टाइम, दैट ही रिटन इन हिज बुक। जिसमें एक एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि सुल्तान ने जो है इब्न बटूटा से कहा कि नसीरुद्दीन से खुश होके, नसीरुद्दीन जो था उसने अपना जो है कोई सरमन दिया था, जो उस लेक्चर से, नसीरुद्दीन की बातों से खुश होके, उस लेक्चर से खुश होके जो सुल्तान ने नसीरुद्दीन को जो है 1,00,000 कॉइन दिए और 200 स्लेव्स दिए उसका सरमन सुनने के बाद। तो दैट वाज द कॉमन थिंग ऑफ प्रेजेंटिंग गुड्स एंड स्लेव्स जस्ट लाइक इन फॉर्म ऑफ गुड्स। सो दे वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्लेव्स। अब किस तरीके के स्लेव्स हुआ करते थे वहाँ पे एट दैट टाइम, स्लेव्स जो हैं अलग अलग, लाइक स्लेव्स, वुमेन स्लेव जिसमें डांसिंग, इसमें बेसिकली वुमेन्स की बात करें, स्लेव्स का नाम आए तो जो फर्स्ट फोकस्ड ऑन द वुमेन स्लेव। डांसिंग लाइक एज अ डांसर्स भी हुआ करती थी, वो म्यूजिशियंस भी हुआ करती थी, या म्यूजिक में भी वो मदद किया करती थी, लाइक डांसिंग इन द कोर्ट्स एंड प्लेइंग म्यूजिक इन द कोर्ट ऑफ दैट इन दैट लाइक सुल्तान, लाइक दैट। सम वर डूइंग द वर्क ऑफ डिटेक्टिव्स ऑल्सो, स्पाई वर्क भी किया करती थी, डोमेस्टिक लेबर्स भी हुआ करती थी, स्लेव्स वर कैरिंग द पालनकीन ऑल्सो, बट हेयर इट इज़ नॉट द वुमेन स्लेव। और स्लेव्स पालनकीन का काम भी किया करते थे, लाइक ये फीमेल स्लेव्स का है, पर जनरल ये जो है बीच बीच में मैन का भी बताया, जैसे पालनकीन होते हैं वो पालकी उठाते, ठीक है, वो पालकी भी उठाने का काम किया करते थे स्लेव्स, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को उठाता है, जो बहुत ही जो है इसको बहुत जो है इब्न बटूटा ने जिस चीज़ को बहुत ही ऐसे लाइक एज अ जोक उन्होंने बोला कि किस तरीके से ये पालकी में जो एक इंसान दूसरे इंसान को उठा के ले जाते हैं। प्राइजेज ऑफ द स्लेव्स वर लो, पर्टिकुलरली फीमेल डोमेस्टिक लेबर तो इतनी लो हुआ करती थी कि बहुत इजीली अवेलेबल, कि हर कोई उसे अफोर्ड कर लिया करता था। सम ट्रैवलर ऑल्सो नोटिस द डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट। नाउ दिस इज द थिंग कि किस तरीके से वुमेन को ट्रीट किया जाता था वेस्टर्न सोसाइटी और ईस्टर्न सोसाइटी। देयर वाज अ सो वास्ट डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन इन द वेस्टर्न द ईस्टर्न सोसाइटीज। फॉर एग्जाम्पल सती सिस्टम जो वहाँ नहीं होता था, ये चीज़ बहुत ही इनको जो है ऑकवर्ड लगी कि जो वहाँ पे नहीं हुआ था, इसे सती सिस्टम दैट वाज हियर फैमिली। तो सती सिस्टम को स्पेशली इब्न बटूटा ने नहीं, बर्नियर ने डिस्क्राइब करा था, क्लियर। सती सिस्टम को बर्नियर ने डिस्क्राइब किया था, अगेन आई एम टेलिंग यू नाउ। सो बर्नियर ने बहुत ही एक अपनी बुक में लिखा भी हुआ है, बहुत उसको क्रूअल लगा कि कुछ औरतों को उनके मतलब लाइक एज यू ऑल नो व्हाट इज सती सिस्टम, कि किस तरीके से उनको जो है मतलब मार दिया, औरतों को उनके हस्बैंड के साथ मार दिया था, तो कुछ तो खुशी खुशी जो है मरने को तैयार हो जाती थी, क्लियर, लाइक दैट डेथ चेयरफुली। बट कुछ को ज़बरदस्ती भी ले जाया जाता था, जिसमें इन्होंने एक स्टोरी देखी है, देयर वाज स्टोरी रिटन इन दैट लाइक एक स्मॉल छोटी सी बच्ची है प्यारी सी, एंड आफ्टर दैट साइड मे बी उसमें लिखा है 8 years, एंड उसको किस तरीके से ज़बरदस्ती उसको जो है पैरों के बीच में दबा के उसकी दादी एंड ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट उसको ज़बरदस्ती हाथ पैर उसके बांध के, ना आफ्टर दैट उसको किस तरीके से वो वहाँ बिठा देती है जलने के लिए एंड ऑल दैट द स्टोरी, क्रूअल स्टोरी रिटन बाय सीन बाय द बर्नियर। हाउएवर देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट डन बाय द वुमेन। अब ये तो हो गया, ये एक एस्पेक्ट से हम नहीं सोच सकते हैं, दैट वाज द वन एस्पेक्ट कि उनको सती सिस्टम था या फिर स्लेव्स था, स्लेव सिस्टम स्लेवरी वहाँ पे यहाँ पे हुआ करती थी। द अनदर सिस्टम दैट डिस्क्राइब बाय द इब्न बटूटा और एनी अदर ट्रैवलर्स ऑल्सो, द अनदर एस्पेक्ट वॉज दैट
they were doing all type of tasks, agriculture and non-agriculture activities also they were doing, labor work, clear. They were participating in commercial activities also, मतलब commercial activities में merchant families की जो women होती थी वो shops पे बैठना and all that, अपने husbands के साथ काम करवाना, ये सब भी. sometime merchants families की movement में आपस में disputes होते थे तो वो कोर्ट तक भी जाया करती थी. तो इन होल तो ये जरूरी नहीं है कि दैट वी सीन अबाउट ऑन दैट ऑल दैट नेगेटिव फॉर्म्स की तरह सोचें कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, क्लियर, अवेयरनेस भी थी, ठीक है. सो इट इज़ अनलाइकली दैट वुमेन वर कन्फाइंड टू प्राइवेट स्पेस ऑफ देयर होम. तो ऐसा कहना भी नहीं है कि औरतों को सिर्फ उनके प्राइवेट स्पेसेस उनके घरों के लिए ही थी वहाँ पे इंडिया के एट दैट टाइम इन द 14th सेंचुरी इंडिया में. तो ऐसा भी कहना गलत होगा. वो उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप दे वर डूइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क्स. वो घर के अंदर स्पेसिस में नहीं थी, दे वर डूइंग द ऑल टाइप्स ऑफ द वर्क्स. सो एट द लास्ट इब्न ज़ैज़िग डिप्यूटेड टू राइट व्हाट इब्न डिक्टेटेड. जो भी इब्न बटूता ने डिक्टेट किया उसे लिखा किसने है? ज़ैज़िग ने, क्लियर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दैट्स ऑल योर वीडियो कंप्लीटेड. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.